1989. What a victory for the Sri Lankans. A fantastic effort. Here's the man who's been largely responsible for us over the last. The first World Cup, that is a thrill of joy, and England. Hello to all of my viewers and I welcome all of you in another exciting episode of Match Point by Dr. Adnan। बहुत सी खबरें क्रिकेट की लेके आया हूं, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्रिकेट कम्स होम, क्रिकेट इज बैक इन पाकिस्तान। और इससे ज्यादा खुशी की बात जो है वो हमारे लिए नहीं हो सकती कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो हेडलाइन है, आज की पहली हेडलाइन वो ये है कि बहुत ही अफसोसनाक खबर कि पाकिस्तान कद्दाफी स्टेडियम लाहौर विल बी अनएबल टू होस्ट एनी मैच इन द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का कोई भी मैच कद्दाफी स्टेडियम जो है वो नहीं होस्ट कर सकेगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट because of the sacrifice for the bigger and the larger national cause. The PCB has now announced that the 8 matches to be played in Gaddafi Stadium, Lahore, the headquarters of Pakistan cricket, will now be moved to the National Stadium, Karachi, which is the den of the Pakistan cricket and which is the so-called den of the Pakistan Test cricket, where Pakistan never lost the test match until the 2000 when Moin Khan's Pakistan lost to Nasir Hussain's England. जो तीसरी खबर है वो कोयटा के फैंस के लिए बहुत ही खुशी का बायस होगी और ऑब्वियसली हमारे लिए भी बड़ी खुशी का बायस है, क्योंकि कोयटा इज द इंग्लैंड ऑफ द वर्ल्ड कप एंड कोयटा इज द इंग्लैंड ऑफ दिस पाकिस्तान सुपर लीग। कोयटा वो बदकिस्मत टीम है कि जो ग्रैंड फिनाले में पहुंची, जो क्वालिफायर्स में पहुंची और हर दफ़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन अपने पूरी प्लेयर फोर्स ना होने की वजह से कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम को शिकस्त खाना पड़ी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 1, 2 और 3 में। हालांकि कोयटा 2 मैच बड़े आसानी से लेके जा सकती थी, लेकिन उम्मीद हुई बहाल, क्योंकि शेन वॉटसन जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैकबोन, ही इज राइट नाउ इन पाकिस्तान एंड ही इज रेडी टू जॉइन कोयटा ग्लेडिएटर्स फॉर दिस बिग मैच। So Shane Watson is all set in the Pakistan and looking forward to the Quetta Gladiators and making his effort to make Quetta Gladiators forward to win their first ever maiden cup in the history of Pakistan Super League. And very big news for the team Quetta and the Pakistan Super League is that Shane Watson will be here with us. Welcome to Pakistan. Pakistan is famous for the fast bowling factory, whether it is a Sikandar Park, Sarfraz Nawaz, Imran Khan, or Wasim Akram, Waqar Yunus, Shoaib Akhtar, Azhar Mahmood, Abdul Razak. Pakistan is never ending this factory of fast bowlers, and we got another one after Haris Rauf in the via the courtesy of Pakistan Super League. And please welcome Mohammad Hussain. He is producing some brilliant fast bowling in this Pakistan Super League, and it's so encouraging and so wonderful to see one more youngster from Pakistan who is touching the speed of 150 plus kilometer an hour. शोएब मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान और इस वक्त मुल्तान सुल्तान के कप्तान, मुल्तान सुल्तान की टीम जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन शोएब मलिक जो है वो बड़े खुश हैं इस वजह से नहीं कि मुल्तान सुल्तान बाहर हो गई है, बल्कि पाकिस्तान is getting some promising pace.
वो कहते हैं कि लाहौर कलंदर, कोटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड have produced some brilliant pacers who are able to represent Pakistan and who are having the full potential to join Team Pakistan in future. All three bowlers, Musa, Rauf and Hasnain, have lot of strength who bowl consistently with a pace above 145 plus. DJ Bravo, who is a part of the Quota Gladiators and very happy, and he is also traveling to Pakistan. He has said that Hasnain could have been a big asset for Team Pakistan. He has seen him in the nets, he has seen him in the team, he has seen him bowling. And DJ Bravo ने कहा कि जब हसनैन बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो यूजुअली मिड ऑन या मिड ऑफ पे होती हैं, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू coach him and to give him the best tips which can make him shine with the team Pakistan. और तो और जो कमेंटेटर बॉक्स है, इंक्लूडिंग द रमीज राजा, डैनी मॉरिसन एंड एलन विल्किंस, वो भी खामोश नहीं रह सके. उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ, मूसा और हसनैन, दे आर द बिग एसेट्स फॉर टीम पाकिस्तान इन द फ्यूचर. लाहौर कलंदर का नाम लेंगे. लाहौर कलंदर की टीम जिन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग में लाखों लोगों के दिल मोल लिए हैं. एवरी टाइम व्हेन दे कम टू द सीन दे कैन नेवर मेक टू द प्ले ऑफ, बट स्टिल दे आर इन द हार्ट ऑफ द पीपल. उनके लिए बहुत बड़ी खबर कि उनके पास अभी भी उम्मीद की किरणें जो हैं वो बाकी हैं, और दे आर प्लेइंग वेरी गुड एंड स्टिल दे कैन बी एबल टू मैनेज द लास्ट फोर. और कराची किंग्स से उनका घमसान का रन पड़ सकता है. आर्च राइवल्स कराची किंग्स, और उनमें से कोई एक टीम लगता है कि जाएगी प्लेऑफ में. लेकिन जहां उनके लिए एक अच्छी खबर है, वहीं पर लाहौर कलंदर्स के कलंदरी फैंस के लिए एक मेरे पास बैड न्यूज़ भी है. बैड न्यूज़ ये है कि जहां पर टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, शेन वॉटसन जैसा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान आ गया है, वहां पर लाहौर कलंदर को सुपर डुपर AB डिविलियर्स की खिदमत इस बार हासिल नहीं होंगी, क्योंकि AB इंजरी की वजह से वापस जा चुकी हैं. पहले काफ़ी उम्मीद पैदा हो चली थी कि AB ने कहा था कि लाहौर के वो 2 मैच खेलने पर रजामंद है, लेकिन ना ही लाहौर के मैच रहे और ना ही AB रहे. लाहौर कलंदर्स के लिए एक बड़ा धक्का that AB डिविलियर्स is not with them. जहां हमने आपको AB डिविलियर्स की खबर सुनाई, तो वहीं पर अगली खबर AB डिविलियर्स के साथी और उनके टीममेट साउथ अफ्रीकन स्प्रिंगबॉक इमरान ताहिर की खबर सुनाएंगे. पाकिस्तानी निजाद इमरान ताहिर जो नुमाइंदगी करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम की, वो इस वर्ल्ड कप 2019 में बिल्कुल शरीक होंगे. आप घबराइए नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि he has decided to call it a day when he will be joining the South African squad in the current World Cup. लेकिन T20 की फॉर्म के बारे में उन्होंने ताहाल अभी कोई फैसला नहीं किया that whether he will be a part of the T20 squad or not. लेकिन उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के साथ उनका ये आखिरी आउटिंग होगा वर्ल्ड कप 2019 टू द इंग्लैंड. हेडलाइंस ख़त्म करने से पहले, क्लोज करने से पहले आपको एक और अभी ट्रिविया फैक्टर भी मुझे देना है, लेकिन जो आखिरी खबर है वो देना चाहूँगा आपको मैं चैंपियन टीम्स के बारे में. चैंपियन टीमें जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, वो 2 ही हैं. एक हो गई ज़ालमी आपकी फेवरेट, और दूसरी हो गई ग्लैडिएटर्स वर्सेस ज़ालमी. एक घमसान का रन जो है वो पड़ता है जब ये 2 टीमें मिलती हैं, और रन्स का मार्जिन जीतने का वो एक ही होता है. देखना ये है कि क्या वो मार्जिन बढ़ पाएगा या नहीं होगा, या इससे कम सडन डेथ पे जाएगा. द बेस्ट 2 टीम्स, ग्लैडिएटर्स एंड ज़ालमी, एवर इन द लास्ट 3 एडिशन ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग. ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है. हम कुछ ही देर बाद जब हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उसमें आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे ग्लैडिएटर्स के पहुंचने के. लेकिन आपको ये बताना चलूँ ग्लैडिएटर्स के बारे में कि ग्लैडिएटर्स की जो आपने ट्रिम देखी है, जो उनकी शर्ट है, शर्ट पर्पल कलर की जो आउटिंग है, आउटलाइन जो है, दैट इज़ गोल्डन क्रॉसिंग्स हैं सारी उसके ऊपर. लेकिन पाकिस्तान आने की खुशी में और पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल पाकिस्तान की खुशी में जो ट्रिम है उसको चेंज कर दिया गया है. अब कोटा ग्लैडिएटर्स, जिस तरह के फुटबॉल टीमें अपना अवे गेम और होम गेम में डिफरेंट कलर्स पहनती हैं, कोटा ग्लैडिएटर्स इज द फर्स्ट एवर टीम ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग जिन्होंने अवे शर्ट और होम शर्ट का ट्रेंड जो है वो सेट किया है, जस्ट लाइक द फुटबॉल टीम. और कोटा की टीम जो है वो सेम पर्पल शर्ट पहनेगी, लेकिन उसकी जो आउट ट्रिम होगी उसको गोल्डन से ग्रीन कर दिया गया है टू इंडिकेट दैट क्रिकेट कम्स होम.
और अब बारी आ गई है आपको बताने की ट्रिविया फैक्टर बिफोर वी टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ट्रिविया फैक्टर ये है कि आज का दिन जो है वो बड़ा अहम दिन है। जो फैंस हैं मेरे वो जानते हैं इस बात को, वो किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं करते। लेकिन एक वो खिलाड़ी जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि वो उनको पसंद करते हैं और उनको देखना चाहते हैं और उनकी एक झलक देखने के लिए जो है वो हमारे फैंस जो हैं वो मैच पॉइंट के वो बेताब हैं। आज है उनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कौन है वो शख्स जिसकी आज है बर्थडे? 1980 में वो पैदा हुए। आज के दिन इंटरनेशनल मैचेस 524 मैच खेले उन्होंने और 476 छक्के लगाए, 476, सेकंड लोएस्ट दैन द क्रिस गेल। और उन्होंने जो चौकों की तादाद है वो 1053 है, 1053 चौके और 476 छक्कों के साथ इनके रन्स की तादाद 11,196, जबकि उन्होंने 541 विकेट्स जो हैं वो हासिल कर रखी हैं। बिल्कुल जी, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मनाज़र दिखाएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पाकिस्तान सुपर लीग। और अबू धाबी, ऑफ कोर्स अबू धाबी दुबई की जो लास्ट लेग थी वहां पर टीमों ने क्या खोया क्या पाया, ये भी डिस्कस करेंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन द ट्विटर एंड ऑन द इंस्टाग्राम DRADNANKHAN, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पेज ग्रेटेस्ट एम्पायर USA पे। देखते रहिए मैच पॉइंट। आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ऑन द मैच पॉइंट। UAE जो लेग है फॉर द पाकिस्तान सुपर लीग दैट हैज बीन फाइनली कंप्लीटेड। ऑल टीम्स आर सेट टू प्ले इन पाकिस्तान। क्रिकेट कम्स होम, वेलकम द क्रिकेट इन पाकिस्तान। और तमाम टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं मुल्तान सुल्तान के अलावा इन कराची। कराची जो है वो इस वक्त सज चुका है और कराची के मैदान जो हैं वो बेताब है इस वक्त एक भरपूर इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के लिए। एंड इट्स अ टाइम फॉर एक्शन पैक ड्रामा इन पाकिस्तान। कोटा ग्लैडिएटर्स ने कंफर्म किया है, जैसा कि मैंने आपको हेडलाइंस में बताया, कि जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं उनका वो उनके साथ शामिल होंगे। एंड कोटा ग्लैडिएटर्स इज वन ऑफ द 2 टॉप टीम्स हु हैव जॉइंड द प्ले-ऑफ, द फर्स्ट एवर टीम इन दिस पाकिस्तान सुपर लीग, जस्ट लाइक द लास्ट टाइम दे हैव मेड टू द प्ले-ऑफ। कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम अब्दुल रज़ाक, विव रिचर्ड, सरफराज अहमद और मोइन खान की टीम जो है इस PSL के प्ले-ऑफ में पहुंचने वाली पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे पहली टीम जो है वो बन चुकी है। उनका जो मैच हुआ आखिरी मैच वो बड़ा ही दिलचस्प मैच था। उसको मैं बताना चाहूँगा आपको उसके बारे में कि देयर वाज अ 129 रन्स पार्टनरशिप बिटवीन अहमद शहजाद एंड शेन वॉटसन which have brought Quetta Gladiators close to another win in the Pakistan Super League. Quetta Gladiators have confirmed the top 2 spots with a 43-run emphatic win over Islamabad United in the 26th match of PSL 2019. Victory had 2 stars as I told you. Selfie master अहमद शहजाद, जिनका बैट जो है वो क्लिक नहीं हो रहा था और बल्ला जो है वो रन्स नहीं उगल रहा था। फाइनली उन्होंने कसम तोड़ी उमर अकमल की तरह और उनका बल्ला जो है वो रन्स उगलना शुरू हो गया। 73 ही मेड, helping Quetta post a total of 180 for 9 before Fawad Ahmed 3 for 26 and other bowlers restricted Islamabad to 137 for 9. यूनाइटेड की टीम जो है वो इतनी बुरी टीम नहीं है, बड़ी अच्छी टीम है और एक्सपेक्टेडली तीसरी टीम होगी जो प्ले ऑफ ज्वाइन करेगी। अगर कोई ड्रामाटाइज हम नहीं करते और कोई ड्रामा अगर क्रिएट नहीं होता कराची में, तो लगता ये है कि ज़ैलमी और ग्लैडिएटर्स के बाद ये तीसरी टीम होगी इस्लामाबाद और आखिरी पोजीशन की जो जंग होगी वो कलंदर्स और किंग्स के माबैन होगी। लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है, कुछ कहते नहीं है। इस्लामाबाद की टीम बड़ी अच्छी थी लेकिन चेजिंग दिस टारगेट ऑफ 181 which was a huge target, we thought that Luke Ronchi should have been enough to chase this target, but Islamabad were kept in the game by Luke Ronchi who smashed 64 on the 63 balls. But I think Gladiators were too good to handle by Islamabad. Once he departed in the 15th over, it all went downhill from there for the defending champions United. डीनो की जो रेड बुक है उसके अंदर भी उसका सुराग ना मिल सका।
कि ग्लैडिएटर्स को कैसे चेस किया जाए। ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ द कैमरॉन डेलपोर्ट 25 एंड सुमीत पटेल 14 वर द ओनली 2 बेस्ट स्कोर्स आफ्टर Ryonkey to see them in the double figures, and rest of the United collapsed in front of the super duper gladiators of Sarfraz Ahmed। ग्लैडिएटर्स की जब मैं बात करूं तो मोहम्मद हसनैन की बात ना करें तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मोहम्मद हसनैन 18-year-old diamond from Pakistan, he is generating a pace of 151 km per hour, 93 miles per hour पे record speed जो है वो जनरेट की गई है, जो इस पाकिस्तान सुपर लीग की फास्टेस्ट एवर बॉल है। एंड जहां हम इस बॉल की बात करते हैं तो वहां पर यह भी मंजर आम पे आया है कि सिलेक्टर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट माइट बी हसनैन या हारिस रऊफ इनको ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिल सकता है। स्टिल थिंग्स आर टू प्रीमेच्योर टू कमेंट, लेकिन लगता है कि इनमें से किसी एक को पाकिस्तान कैप जो है वो मुतवक्का है जो जा सकती है। कराची किंग्स के लिए एक बुरी खबर कि मैच पॉइंट की टीम जो है वो तहे दिल से अफसोस करती है, एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर द अनटाइमली डिपार्चर ऑफ मोहम्मद आमिर्स मदर। मोहम्मद आमिर जिनकी वालदा का इंतकाल हो गया और उनको मैच छोड़ के जो है वो वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। फिलहाल कराची किंग्स ने कंफर्म किया है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो वालदा की तदफीन के बाद जो है वो दोबारा जब कराची पहुंचेगी, और जब वो कराची चूँकि पहुंच चुकी हैं किंग्स, तो वहाँ पर मोहम्मद आमिर उनको प्ले ऑफ से पहले जो है क्रूशल मैच जो क्रंच मैचेस होंगे जिसमें उन्हें पिन डाउन करना होगा कलंदर्स को, अगर उन्होंने प्ले ऑफ्स खेलने हैं तो उम्मीद की जा रही है कि आमिर जो है वहां पर टीम को ज्वाइन करेंगे। आफ्टर द डिफीट फ्रॉम द कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान ऑफ शुएब मलिक एंड शाहिद खान अफरीदी लाला द बूम बूम has been got out of the Pakistan Super League, and they became the first team in this Pakistan Super League who has been knocked out of the tournament। राना साहब कहते होंगे जी शुक्र है मुल्तान सुल्तान भी आया, वरना हर बार ये जो अनवांटेड किस्मत का सेहरा है ये राना साहब की टीम को पहनना पड़ता था। तो कलंदर जो है इस दफा बच गए हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4। Gladiators, as I told you, again confirming, have qualified for the playoff for the Pakistan Super League 2019। और मुल्तान जो है वो हारने के बाद वो पहली टीम बन गए जो बाहर हो गए, और जो लेकिन उसके बावजूद हारने के बावजूद जो शाहिद खान अफरीदी थे बर्थडे बॉय, ही गॉट द एक्सीलेंट स्पेल इन द लास्ट मैच इन द 4 ओवर्स। उन्होंने सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, और उन्होंने शो कराया कि जब वो बैट से नहीं चलते तो वो बॉल से ज़रूर चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम जो है वो क्लिक नहीं कर सकी। जो दूसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में, वो कलंदर्स वर्सेस ज़ैल्मी था। लाहौर की टीम वर्सेस पेशावर जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच देखने में आया, लेकिन उस मैच को बताने से पहले एक टाइम हो गया है हमारे किलर फैक्टर का। धन धन धन, ब्रिंग द म्यूजिक ऑन। जब बात करते हैं हम किलर फैक्टर की तो बात करेंगे हम इस दफा पेशावर ज़ैल्मी के उस तराशे हुए हीरे की जो उन्होंने खींच लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और उस हीरे का नाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान मिसबाहुल हक। एट 44 years of age with 281 days old, मतलब 44 साल और 281 दिन की उम्र वाले मिसबाहुल हक, ही बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द T20 मैचेस जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। T20 की क्रिकेट की तारीख में, इंटरनेशनल तारीख में ये सबसे उम्र रसीदा प्लेयर हैं जिन्होंने 50 रन बनाया, और ना सिर्फ 50 रन बनाए, अपनी टीम को भी बचाया, और उस वक्त टीम का स्कोर 20 पे 5 था। इस पे आपको ज़रूर कुछ याद आया होगा, लेकिन बिल्कुल मुझे भी याद आया यार, मैं भूला नहीं हूँ। आपको बताऊंगा कि मिसबा के लिए ये कंडीशन कोई नई नहीं थी। 20 for 5 पे आके टीम को बचाना, रेस्क्यू करना, दिस वॉज समथिंग टू मच। लेकिन किलर फैक्टर जो है हमारा वो ये था कि ही वॉज अप अगेंस्ट द 2 टीनएजर्स। शाहिद खान अफरीदी जो एक ज़माने में टीन एज हुआ करते थे,
और दूसरे संदीप लमाशान, जिनके बारे में बताता हूं कि कलंदर्स की ब्यूटी लमाशान, जिनका ताल्लुक नेपाल से है, एंड ही इज द ओनली प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन द PSL बिकॉज ऑफ हिज सुपर डुपर बॉलिंग। संदीप लमाशान और शाहिद खान अफरीदी जो सीनियर मोस्ट प्लेयर है इस वक्त मुल्तान सुल्तान के, उन दोनों की कंबाइन एज जो है अगर उनको मिला दिया जाए उनकी उम्रों को, तो दैट बिकम्स 36 years and 8 days. So still they are 8 years younger than मिसबाहुल हक। वो दोनों मिल के भी मिसबाहुल हक से 8 साल छोटे हैं। This was it from the Killer Factor। लेकिन बात हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और जानने नहीं देंगे आपको कि मिसबाहुल हक जिनकी एज जो है वो 44 बरस हो चुकी है, he walks into the bat when his team was 8 for 2, 8 पे 2 आउट थे, एंड देन हिज टीम बिकेम 12 for 4, 12 पे 4 थे, और उसके बाद उनकी टीम 20 पे 5 थी। अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप 2015 का मैच जिसमें टीम पाकिस्तान वाज अप अगेंस्ट टीम वेस्ट इंडीज, तो उसमें भी हालात कुछ ऐसे ही थे, हालात मुख्तलिफ नहीं थे। मिसबाहुल हक कहते हैं कि जब मेरी टीम बैटिंग शुरू करती थी और मैं नंबर 4 पे होता था, तो मैं ओपनिंग बैट्समैन के साथ ही पैड पहन लेता था। लगता है उन्होंने ये प्रैक्टिस पेशावर ज़ल्मी में नहीं की थी, जब भी उनको बहुत जल्दी करनी पड़ी मैदान में आने पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो ड्रामा पाकिस्तान टीम के अंदर उनके साथ होता रहा है, शायद उसकी रिपीट स्टोरी होने का टाइम पेशावर ज़ल्मी के कैंप के अंदर भी आ गया है। 100 runs then partnership with Darren Sammy, the captain of the Peshawar Zalmi, and then he scored 59 not out. Peshawar Zalmi win the match with a 1 ball to spare. Would you believe? Take a ball. Misbahul Haq and Darren Sammy started for their side and pulled off a tricky run chase to power their side to the playoff after Kota Gladiators, and they became the second team now in the PSL 4 to confirm their spot for the playoffs 2019. Misbahul Haq struck a fighting 55 ball 59 not out, while Darren Sammy notched 36 ball 46 as the pair lifted Peshawar from a precarious 20 for 5 to help chase them down the modest target of 125 runs in 19.5 overs with 1 ball to spare. While Lahore battings, I just want to tell you कि जब लाहौर की बैटिंग आई तो they were never in the control और वो कभी भी लाइन के ऊपर नजर नहीं आए। हारिस वेल 33 ball 43, डेविड वॉसे 26 of 16 balls and Umair Masood 28 of 22 helped Lahore to a lackluster 124 for 7, but that was not helpful to meet the excellence of evergreen Misbahul Haq. Shaheen Shah Afridi's opening spell wrecked Peshawar top order. एक टाइम पे लग रहा था कि पेशावर जो है शायद कभी भी गेम में वापस ना आ सके, विद द विकेट्स ऑफ इमामुल हक जो 4 पे थे और उमर अमीन और लाइम डॉसन जो गए, तो उस वक्त पेशावर जो है वो 12 पे 4 था। लेकिन शहीन शाह अफरीदी के अर्ली धचके के बाद मिसबाहुल हक ने साबित किया कि प्लेयर जो है वो प्लेयर होता है और कैप्टन होता है, और जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस होता है। दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ द मिसबाहुल हक। सेम स्टोरी वाज हैपनिंग विद द मिसबाह व्हेन ही वाज विद द पाकिस्तान टीम, and the same thing he did to save the blushes of Peshawar Zalmi. और अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकल लाहौर कलंदर्स की, तो सेम थिंग हैपन टू द लाहौर कलंदर्स जो मिसबा के साथ हुआ। मिसबा की स्टोरी भी सेम है कि 12 पे 4 या 20 पे 5 पे वो भी आते हैं, और लाहौर कलंदर्स के साथ भी यही स्टोरी होती है कि द सर्टेन मैचेस वे दे आर गोइंग टू विन द मैच, वेदर इट्स अ सुपर लीग सीजन 1, 2, 3 और 4, जीता हुआ मैच हारने में इनका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान टीम और लाहौर कलंदर के दरमियान 2 कदरें मुश्तरक है, एक जीता हुआ मैच हारने की और दूसरा हरा रंग पहनने की। अल्लाह ही खैर करे। प्रोग्राम मुझे क्लोज करना होगा, लेकिन प्रोग्राम क्लोज करने से पहले आपको एक और हल्का फुल्का किलर फैक्टर देंगे, एंड दिस इज किलर फैक्टर इज अबाउट शेन वॉटसन। ब्रिंग द म्यूजिक ऑन। As I told you that the Shane Watson of the Australian team, the super duper star, most of you will be knowing him in the 2015 Cricket World Cup in the famous spell of Shane Watson versus Wahab Riaz, where Wahab Riaz outclassing Shane Watson, but then because of the dropped catches,
ultimately Shane Watson's Australian team winning the quarter-final against Pakistan, and Pakistan went out of the Cricket World Cup 2015. साल है अब 2019। शेन वॉटसन है मौजूद पाकिस्तान में। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में शेन वॉटसन की खिदमात ग्लैडिएटर्स को हासिल नहीं हुई, जिसकी वजह से वन साइडेड मैचेस के बाद ग्लैडिएटर्स ज़ेल्मी और दूसरी टीमों से मैच हारते रहे। लेकिन अब शेन वॉटसन पाकिस्तान में मौजूद है। उनका पाकिस्तान में मौजूद होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो आखिरी दफा पाकिस्तान कब आए थे। शेन वॉटसन टीम ऑस्ट्रेलिया से हीरोइक कारनामे सर अंजाम देते रहे, लेकिन आप में से शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि टीम ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान से खेली तब शेन वॉटसन पाकिस्तान से खेले। बट शेन वॉटसन नेवर प्लेड विद पाकिस्तान टीम इन पाकिस्तान। लेकिन शेन वॉटसन पाकिस्तान फिर भी आ चुके हैं, और कब आए हैं? आज से 14 साल पहले, 14 years ago, 2005 में he was the part of the Australian team who came to the Pakistan। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया का साथ पाकिस्तान कभी नहीं आए, तो ये पाकिस्तान कैसे आए? वो ऐसे आए कि वो टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ए थी, और उसका मैच था पाकिस्तान ए के साथ। पाकिस्तान ए और ऑस्ट्रेलिया ए के माबैन जो मैचेस हुए, शेन वॉटसन वाज इन पाकिस्तान, ही प्लेड इन नेशनल स्टेडियम एंड ही बीट पाकिस्तान ए कन्विंसिंगली अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलियन ए टीम। और अगर आप लोग जानना चाहें कि कौन कौन था उस पाकिस्तान ए में, तो यू विल बी enjoying to know that who was the part of the team Pakistan A back in 2005, and those were Salman Butt, who was the opener of the team, along with the Imran Farhat, the Pakistani opener, then the Bazid Khan, who is right now the commentator in the Pakistan Super League, and then Hassan Raza, Faisal Iqbal were in that team, Yasir Irfat, Tahir Khan, Umar Gul, and now the skipper of Islamabad United, Mohammad Sami, he was also the part of that team जिनको शेन वॉटसन ने कराची में जो है शिकस्त दी। देखना यह है कि क्या शेन वॉटसन ने जो शिकस्त कराची में दी थी पाकिस्तान ए को, क्या वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उस हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं और डैरेन सेमी की पेशावर ज़ेल्मी की टीम को आउट क्लास कर सकती है? क्योंकि डैरेन सेमी वो वाहिद कप्तान होंगे जिनके बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं और फिर कहूंगा कि जिनको दूसरे पाकिस्तानी कप्तानों की निस्बत ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। ही विल बी द ओनली इंटरनेशनल प्लेयर, ही विल बी द ओनली इंटरनेशनल कप्तान जो पाकिस्तान के अंदर होंगे, और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो पाकिस्तानी कप्तानों से ज़्यादा होगी। आपने कहीं जाना नहीं है, और हम आपको नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको हम दोबारा बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ देंगे। आपको दिखाएंगे कि टीम्स की एंट्री नेशनल स्टेडियम कराची और कराची सिटी में कैसे हुई। लेकिन आपको रहना होगा हमारे पेज पे जुड़ा रहना, और आपको रहना होगा हमारे यूट्यूब ग्रेटेस्ट एम्पायर यूएसए पे, जहां पर हम आपको मनाज़र दिखाएंगे अगली मरतबा कि हाउ द टीम्स एंटर्ड इनटू द स्टेडियम, हाउ द टीम्स एंटर्ड इनटू द सिटी, हाउ द टीम्स एंजॉयड देयर फ्लाइट। ये सभी कुछ जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा मैच पॉइंट पे डॉक्टर अदनान, एक्सक्लूसिवली ऑन ई आवाज़। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज सेम थिंग, स्क्रॉलिंग डाउन ग्रेटेस्ट एम्पायर यूएसए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल नंबर भी स्क्रॉल कर रहा है नीचे, 7865445566 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप हमें वीडियोस भेज सकते हैं, अपनी सजेशंस भेज सकते हैं। सुपर फैन को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डू सेंड अस अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो छोटी सी बना के वीडियो भेजिए, बताइए अपना नाम और बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्ट पहनिए और आ जाइए मैच पॉइंट में। जिंदगी रही तो दोबारा अगली मरतबा फिर यहीं इसी सेट पे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय बाय। Hello to all of my viewers and I welcome you and another match. Sorry, गड़बड़ हो गई यार, वो लड़के का नाम भी अच्छा मोहम्मद हुसैन, शुएब मलिक
क्या कह रही है पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। शोएब मलिक जो है, ओहो शोएब लीग हो गया। जहां एबी डिविलियर्स की हमने आपको खबर सुनाई, वही 1000 और 11 गड़बड़ कर दी यार, यहाँ से मिक्स कर लेंगे। मैं बीच में ही, मैं इस बीच में रन्स का बताता हूँ उसके बाद ना। Fantastic. There's the man who's been largely responsible for us over the last The first World Cup, that is Australia's joy and England